Bismillahirrahmanirrahim. So we were discussing the management portion of this course. So we have discussed some management fundamentals about the. We have discussed about the management principle functions. Okay. Also, we have discussed about the qualities of a leader and manager and the uh, requirement that how a project manager will be selected. Also, we have discussed the characteristics of the effective team when they are working in a project. Okay. In the previous class, uh, we discussed about the uh, difference between the project and program. Okay. Today we will moving forward towards the project life cycle and project scheduling and control. These are the most important, we can say, the topics in the management of any project. That what are the different stages? Yeah, what are the different phases of a specific project? Okay, and also how you will schedule a project and how you will control it. Okay, so today we will discuss about the project life cycle and the project scheduling and controlling. Okay, so again, let's revise the some basic terminologies. So as we have discussed that a program is the a program is a group of related projects which are managed in a coordinated way to obtain the benefits. Okay, suppose if you complete an individual project, so you are not getting the required result, yeah, the required goal or the required benefit. Whenever you complete the group of projects, then you achieve your required results or your required objective. So we can say that a program is a group of related project managed in a coordinated way to obtain the benefits which cannot be available from managing project individually. ठीक है, अगर एक प्रोजेक्ट्स या डिफरेंट प्रोजेक्ट आप इंडिविजुअली एकम्प्लिश कर लें तो उनसे वो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता, लेकिन अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट अगर आप कंप्लीट कर लें तो आपका रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाता है. So this group of related projects which are managed in a coordinated way to obtain the required benefits, yeah, the required objective, that is called program. Then specifically, a project is a temporary in one time endeavors which are undertaken to create a unique product. ठीक है, सी प्रोग्राम में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर हर एक प्रोजेक्ट जो है ये एक सिंगल एक्टिविटी होगा. वी कैन नॉट से बट मेजरली ये एक सिंगल एक्टिविटी होगा, उसमें फिर नंबर ऑफ माइनर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी. देयर विल बी टास्क, देयर विल बी वर्क पैकेजेस. सो अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी इन वन टाइम endeavor which are undertaken to create a unique product or a unique service. Okay, yeah, which can aid some value to the program. एक प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोग्राम को कुछ पोर्शन एड करता है, कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, सो अगेन a project will have a start and end point and will have specific objective. Okay, so when the project is completed, that specific objective will be achieved. And when a number of project is completed combinedly in a coordinated way, then the objective of the program will be achieved. Okay, so again then we have some different constraints in the projects. हमारे पास different constraints होते हैं project के. एक जो है project का scope होता है, which is what exactly is the expected outcome. ठीक है, कि एक प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, दैट इज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज टाइम, दैट व्हेन द आउटपुट विल बी डिलीवर्ड.
ठीक है, कि प्रोजेक्ट का, रिमेंबर वी आर फोकसिंग ओनली ऑन प्रोजेक्ट, कि एक प्रोजेक्ट का आउटकम क्या होगा, what exactly is the expected outcome, that is scope of the project, when that output will be delivered, that is the time constraint of the project, then how much money is available to achieve that outcome, so that is the cost constraint of the project. Okay, then how close the outcome will match the expectation. Before starting the project, first we have some expectation कि हम ये अचीव करेंगे, फिर आप जो ऑब्जेक्टिव या आप जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, तो आप कंपेयर करते हैं कि आउटकम और एक्सपेक्टेशन की कोरिलेशन क्या है, ठीक है, या आउटकम जो है वो कितना एक्सपेक्टेशन के साथ मैच हो रहा है, दैट इज द क्वालिटी कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट की आउटकम को अचीव करने के लिए कौन से लोग रिक्वायर्ड होंगे और कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, या हु एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क, दैट इज द रिसोर्स कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। आल्सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड, वी कैन से दैट, जो अनवांटेड सिचुएशंस होते हैं ना एक प्रोजेक्ट में, कि सपोज जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकते हैं, सो दैट इज द रिस्क कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, सो ये 6 कंस्ट्रेंट होते हैं प्रोजेक्ट की, दैट व्हाट इज द स्कोप, टाइम पीरियड, कॉस्ट, क्वालिटी एंड resources and risk. These are called the constraint of the project. Okay, why we are working on a project, so we have some specific goal which we want to achieve. So goal is the desired result of an activity, या एक प्रोजेक्ट का जो expected, desired या wanted result होता है, that is called goal of the project. Okay, and which may be achieved within the limit of a certain time interval. ठीक है, वो गोल जो है वो आपने विद इन दी सर्टेन टाइम पीरियड एंड विद इन दी अवेलेबल रिसोर्स आपने अचीव करना होगा। सो गोल इज द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट। सो एज वी हैव डिस्कस्ड दैट in the project we have 6 constraints. One is the we can say that resource availability or time. Now the process of using the available resources to achieve the results within the time period, that is called management. ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको टाइम दिया गया है, आपने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। So the process of using the resources to achieve the required goal, objective or benefit or result within the time period, that is called the management. ठीक है, तो then we know that कि resources में हमारे पास people, money, time, work procedure, energy, material, equipment, these are the available resources. और goal क्या होगा? To maximize the profit, to maintain the growth, maintain our growth of the financial strength of an organization, quality standard, satisfaction of the customer, professional obligation and societal concern. These are the goals. ठीक है, तो इसको फिर हम मैनेजमेंट कहते हैं जनरली। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? So जिस तरह हमने डिस्कस की, now you can link the definition of the project with the definition of the management, that the application of knowledge, skill, tool and technique to project activities to achieve the required goal within the time and within the available resources, that will be the project management.
ठीक है. Then we have a question that why we are doing the project management. ठीक है. So the basic purpose of initiating a project is to accomplish a specific goal. Project हम क्यों करते हैं? पहले हम ये क्वेश्चन कर लें कि why a project. ठीक है. So the basic purpose of initiating a project या starting a project is to achieve a required goal. Now ये goal जो है ये आप achieve करेंगे किसी भी मेथड से, लेकिन possibly it may be not effective and efficient. So the project management is important to achieve the goal effectively and efficiently. ठीक है. And again the reason for organizing the task, for organizing a project, is to focus the responsibility and authority of individual people. ठीक है कि इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अथॉरिटी है उसको आप ऑर्गेनाइज कर लें तो गोल जो है वो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट होगा. दैट इज व्हाई वी आर डूइंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ठीक है. आल्सो द project management indicates that it betterly control the project, it betterly produce the relationship. Okay. Also it increase the rate या the return on investment. जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, and if that project is properly managed then the return on that investment will be maximum. That's why we are doing the project management. Okay. Yeah. Also we can say that why we are doing the project management to shorter the development time, to lower the cost, to get the higher quality, reliability, the higher profit. ठीक है. इसलिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं. मतलब ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है. Why we are doing the project management? To achieve the goal in shorter time, with lower cost, with higher quality, reliability, and with higher profit margin. Okay, and with better coordination with each other. These are the objective, yeah, these are the benefits of the project management. Now remember, whenever you are doing the project management, so obviously you will have to hire the project manager. उसके लिए आप project manager hire करेंगे. Project management की advantages तो होंगे ना, जिस तरह हमने discuss की. Now remember, you will have to pay the price to get these advantages. Because आप project manager hire करेंगे, different लोग hire करेंगे for the controlling and coordinating and organizing of the project activity. So you will have to pay the price. आपने उसके लिए कीमत अदा करना होगा. Now remember, the price which is paid for the advantages is the disadvantage. समझ आ रहे हैं? आप जो प्राइस पे कर रहे हैं ना एडवांटेज के लिए, ये अ टाइप ऑफ लॉस हो रहा है, अ टाइप ऑफ डिसएडवांटेज हो रहे हैं. देन यू विल हैव टू कंपेयर कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे कितना आप प्राइस पे कर रहे हैं और इससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है. सो देन यू विल get the result that the price which we are paying for the project management is less than the advantages which we are getting from the project. समझ आ रही है point? So as a whole we can say that the project management is in the favor of the project or in the favor of the organization. Mean project management जो है ये करना चाहिए. ठीक है. Clear? Terminologies clear हो गए? Yes sir. अच्छा, that was just a type of revision कि आप लोगों के माइंड दोबारा रिवाइज हो जाए कि प्रोजेक्ट क्या है, उसकी कंस्ट्रेंट्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं. आप देखिए ये जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है और प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग एंड शेड्यूलिंग जो है, दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने किन चीजों को देखना होगा.
So specifically in project life cycle, we are dealing with the stages of a project. कि एक project किस तरह, how a project will be initiated, how a project will be executed, या practically work will be performed, and how a project will be closed, या उसका termination किस तरह होगा, इसको project life cycle कहते हैं. ठीक है. So we will know about these 4 stages of the project. See, one is the initiation, that is starting of the project. So how a project born, we can say, एक project किस तरह start होता है, उसकी concept किस तरह आ जाता है, उसकी initiation क्या होता है. Then we have the planning stage. Okay, initiation जो है, it is a type of idea कि अगर आपने एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसको आप किस तरह अचीव करेंगे. सो फर्स्ट यू विल हैव टू थिंक फॉर द सॉल्यूशन. सो अगर आपके पास एक आइडिया आ जाए तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया. देन यू विल प्लान फॉर इट, ऑर्गेनाइज, एंड यू विल प्रिपेयर द budget, you will prepare the schedule. After that, you will execute the project, you will practically work out on it, and at the end you will close the project. So जब project close हो जाते हैं, project terminate हो जाता है, तो objective achieve हो जाती है. ठीक है, that is called the project life cycle. Okay. Before going into that individual stages, first let's see the different types of the project life cycle. So most projects are we can say that they are इसका जो कर्व होता है वो S shape का कर्व होता है. Okay, they go through similar stages on the path from origin to completion. अब देखें यहां से टाइम क्या है, 0 है. प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है, 0%. नाउ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, द प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो ये जो है ये स्टार्टिंग स्टेज होगा, इनिशियल स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज होगा, प्राइमरी स्टेज होगा. ये जो है ये मिडिल स्टेज है, एग्जीक्यूशन स्टेज है, वर्किंग स्टेज है. ठीक है, और आखिर में ये जो है ये क्लोजिंग स्टेज है, टर्मिनेशन स्टेज है, फाइनल स्टेज है. अब देखें, सपोज अगर आप एक एग्जांपल ले लें ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. सो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, वी आर परफॉर्मिंग द सर्वे ऑफ द एरिया. फिर हम उसकी आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाते हैं, उसके लिए कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं मटेरियल की. ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेज में आ जाएगा. उसके बाद फिर क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाता है. फाउंडेशन बनाते हैं, फिर उसके ऊपर वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसकी रूफिंग और फ्लोरिंग होती है. आफ्टर दैट फिर फिनिशिंग होता है ना, सैनिटरी का वर्क होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वर्क होता है, उसमें पेंटिंग होता है, तो ये क्लोजिंग होगा. ठीक है, सो डिफरेंट प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल की कर्व होती है वो डिफरेंट होती है. दिस इज कॉल्ड दी S type curve of the project life cycle. Begin. First, the project is born, mean it's the startup phase, it's the initial phase, and a manager is selected. ठीक है, the project is organized, schedule prepare हो जाता है, cost estimate किया जाता है. ठीक है, एंड द इनिशियल रिसोर्सेज जो है उसको आप असाइन करते हैं, उसको आप असेंबल करते हैं, कंबाइन करते हैं, कलेक्ट करते हैं रिसोर्सेज को, और इसके बाद जो है काम स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, उसमें एक मोमेंटम आ जाते हैं ना प्रोजेक्ट में. ठीक है, देन वर्क गेट अंडरवे एंड मोमेंटम क्विकली बिल्ड. ठीक है, प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाता है ना प्रोजेक्ट में. तो दिस कंटिन्यू अंटिल द एंड इज इनसाइड. ठीक है, मीन काम होता है ना, तो आपको जो है प्रोजेक्ट का एंड नजर आ जाता है कि प्रोजेक्ट जो है अभी ये कंप्लीट होने वाला है. ठीक है, बट अगेन द कंप्लीटिंग द फाइनल टास्क सीम्स टू टेक एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम. पार्टली आप लोगों ने देखे होंगे ना, कुछ प्रोजेक्ट जो है वो आखिर में क्या होता है, वो उसका टाइम एक्सटेंड हो जाता है. इसको क्या कहते हैं, जो लेबर होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रैग देयर फीट. ठीक है, मीन काम खत्म नहीं करते. उनका थिंकिंग क्या होता है,
कि अगर प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो हम फिर क्या करेंगे, उनका जॉब खत्म हो जाएगा ना। तो एट द इन बास प्रोजेक्ट इसलिए एक्सटेंड होते हैं beyond the scheduled time period due to the laziness or due to the dragging feet of the workers। ठीक है, पैटर्न आप इसको क्या कहते हैं, इसको देखें, स्लो रैपिड स्लो, स्लो रैपिड स्लो प्रोग्रेस है ये प्रोजेक्ट का। फर्स्ट जो आपके पास आइडिया आ जाता है तो आप रिसोर्स कलेक्ट करते हैं, मैनेजर को हायर करते हैं, बजटिंग करते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली मीन प्रोजेक्ट का कंप्लीशन आपको नजर नहीं आ रहा ना, ये ज्यादातर ऑफिस वर्क होता है। इसके बाद जो है प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो जाए तो प्रैक्टिकली आपको नजर आ रहा होगा कि प्रोजेक्ट जो है वो बेल्ट हो रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, सो ये रैपिड हो जाता है। एट द एंड अगेन फिनिशिंग जो है ये फिर स्लो हो जाता है। सो दिस इज अ स्लो रैपिड स्लो प्रोग्रेस, इसको एस करो प्रोजेक्ट साइकिल कहते हैं, और मोस्टली प्रोजेक्ट में यही होता है। ठीक है, एनीवन हु हैज वॉच्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ होम और बिल्डिंग, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना हाउस के, ये उसका स्पेसिफिक करो जो होता है, जनरली करो जो होता है उसका कॉमनली जो है उसका एस शेप का करो होता है। दैट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम परसेंटेज ऑफ द वर्क अगर आप प्लॉट कर लें तो आपके पास इस तरह स्लो एस टाइप का करो होगा। ठीक है, now for the most part it is a result of the changing level of resources used during the successive stage of the life cycle। एक करो आप और भी ड्रॉ कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं। समझ आ रहे हैं? ठीक है, सो दैट इज आल्सो दैट विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल देयर विल बी चेंज इन द लेवल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेज में कम रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, और मिड स्टेज में ज्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड होते हैं, फाइनल स्टेज में अगेन रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम होता है। ठीक है, तो ये जो फिगर है 1.3 फिगर है ये, दैट रिप्रेजेंट द कन्वेंशनल व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एस शेप कर्व। नाउ सम प्रोजेक्ट आर डिफरेंट देन दिस वन, उसका कर्व जो होता है वो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। अगर आप देखें तो मैक्सिममली प्रोजेक्ट जो है ज्यादा टाइम में उसका कम पोर्शन कंप्लीट होता है, लेकिन फाइनल टाइम में प्रोजेक्ट जो है वो जंप करके क्विकली कंप्लीट हो जाता है। इसका इसका अगर हम कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन इस तरह होगा इसका, सपोज अगर एक प्रोजेक्ट जो है if it is composed of a number of sub project, okay, if a project is composed of a number of sub project, तो अगर एक प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लें तो आपको कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आएगा, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है ना उसका कंप्लीशन आपको नजर नहीं आएगा। दूसरा प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाए फिर भी आपको कोई इंडिविजुअल कंप्लीशन ऑफ द सब प्रोजेक्ट से कोई प्रोग्रेस आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये सारे सब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएं तो क्विकली आपको नजर आ जाता है कि यार काम तो खत्म हो गया। तो फाइनल स्टेज उसका रैपिड होता है, स्टार्टिंग इन मिडिल स्टेज जो है वो स्लो होता है। सो दिस इज द स्लो रैपिड साइकिल, या इसको एक्सपोनेंशियल साइकिल कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। ठीक है, कि स्टार्ट में वर्क एक्सट्रीमली स्लो होता है, mean in term of the percentage of the project completion, फर्स्ट स्टेजेस में ये एक्सट्रीमली स्लो होता है, लेकिन एट द फाइनल स्टेज ये क्विकली जंप करके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल कर्व। Okay, so this life cycle often exists for project in which the output is composed of constructed of several
सब यूनिट्स, ठीक है, अगर एक प्रोजेक्ट है वो सब यूनिट पे कंपोज्ड है, तो अगर एक यूनिट कंप्लीट हो जाए ना, वो ओवरऑल प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को, प्रोग्रेस को कम से कम कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन जब सारे आप टुगेदर कर लें, सारे यूनिट आप टुगेदर कर लें, तो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वो टुगेदरिंग स्टेज जो है, कि जब आप प्रोजेक्ट को कंबाइन करते हैं ना, तो ये जो कंबाइनिंग पीरियड है, उससे ओवरऑल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन जो है वो मैक्सिमम होता है उस टाइम पीरियड में। ठीक है, so figure 1.3 जो है, that shows the person project completion is a function of time. The life cycle function is essentially unchanged if for the horizontal axis we use the resources. मीन अगर यहाँ पे आप resources यूज कर लेना, फिर भी करो इसी तरह होगा, because at the starting project completion कम है, तो resources utilization भी कम होगा। सेकंड स्टेज जो है वो, उसमें कंप्लीशन ज्यादा हो रहे हैं, तो रिसोर्स भी ज्यादा यूटिलाइज्ड होंगे। फाइनल स्टेज में कंप्लीशन कम है, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम होगा। बट हियर रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज्यादा है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन कम है। एट द एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम है, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, फॉर एग्जांपल कंसिडर बेकिंग अ केक। सपोज अगर आपने एक केक प्रिपेयर करना है, तो पहले क्या करते हैं, आपने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करना होगा, उसकी फिर मिक्सिंग करते हैं, उसकी फिर प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लेकिन आपको केक नजर नहीं आ रहा। ठीक है, केक अभी तक बना नहीं है, वो प्रिपेयर नहीं हुआ, फिर आपने उसको ओवन में रखना होगा। तो अब ओवन जो है, उस टाइम से जब आप ओवन में रखेंगे ना, तो प्रोजेक्ट जो है वो क्विकली कंप्लीट होगा। समझ आ रहे हैं जी? यस क्लियर? सर। यस सर, क्लियर है सर। अच्छा, also there is another comparison between the two stages of the project life cycle. For the S-shaped life cycle करो, percentage of project completion is closely correlated with cost and resource. समझ आ रहा है? मीन जो ये अगर आप इस तरह आप करो, ड्रॉ कर लेना, with respect to the resource or cost or time, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज क्लोजली कोरिलेटेड। जितने रिसोर्सेज सपोज यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, उतना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो रहा है। जितना कास्ट जो है वो खर्च हो रहे हैं, उतना परसेंटेज ऑफ काम जो है वो हो रहा है। बट हियर इन द दिस वन एक्सपोनेंशियल करो, द एक्सपेंडिचर, द कास्ट और द रिसोर्सेज हैज लिटिल कोरिलेशन विद द प्रोग्रेस। ठीक, देखिए, रिसोर्सेज, टाइम या कास्ट ज्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं, और प्रोजेक्ट जो है उसका कंप्लीशन रेट्स कम है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। करो दैट इन द फर्स्ट करो, the utilization of the resources is closely correlated with the percentage of project completion, and in the next one the resource utilization is less correlated with the percentage of the work completion. So the project manager must know which type of project life cycle is applied to the given project. मीने अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर को आप एक प्रोजेक्ट दे देते हैं ना, तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा साइकिल में कंप्लीट होगा। अच्छा, नाउ ये जो एक फिगर है, as we have discussed, that show the project effort usually in term of person hour or resources expended per unit time. So see, at the starting level, at the conception, selection, planning, and organizing level, the level of efforts, yeah, the resource utilization is minimum. Now, during the execution, during the practical working of the project, वो effort
और रिसोर्स यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होता है, देन एट द टर्मिनेशन या एट द क्लोजिंग पॉइंट अगेन द रिसोर्स यूटिलाइजेशन और द एफर्ट यूटिलाइजेशन बिकम मिनिमम, ये मिनिमम हो जाता है फिर, ठीक है। सो सम प्रोजेक्ट्स एंड विदाउट बीइंग ड्रैग्ड, जिस तरह हमने डिस्कस की ना, सपोज अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो फिर लोग क्या करते हैं, वो ड्रैगिंग करते हैं प्रोजेक्ट की, वो कहते हैं कि अगर प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो जब प्रोजेक्ट ड्रैग हो जाए ना तो फिर इसका करो इस तरह हो जाता है, ठीक है, प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो रहा ना, वो ड्रैग करते हैं उसको। सो सम प्रोजेक्ट इन विदाउट ड्रैगिंग, अब ये जो है दिस प्रोजेक्ट विल बी क्विकली टर्मिनेटेड, ठीक है, एंड सम प्रोजेक्ट में नॉट बी क्विकली टर्मिनेटेड, ठीक है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता और उनको मैसेज दिया जाता है कि द प्रोजेक्ट हैज बीन क्लोज्ड, बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, ठीक है। और जब एक प्रोजेक्ट अचीव हो जाए तो देन यू विल हैव टू स्टार्ट अनदर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो द एंड ऑफ वन प्रोजेक्ट इज द स्टार्टिंग ऑफ अनदर प्रोजेक्ट, ठीक है। So as we have discussed that the minimum efforts is required at the beginning when the project concept is being developed, okay, and subject to the project selection process, then the effort rate is increased or the resource utilization is increased, okay, as the project get momentum. And then at the closing stage or the termination stage, again the efforts or the we can say that the resource utilization become minimum, ठीक है, और प्रोजेक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। So if this hurdle is first, activity increases as planning is completed and the real work of the projects get underway. So let's discuss the different stages of the project, ठीक है, कि उसकी इनिशिएशन में क्या होता है, उसकी फिजिकल एग्जीक्यूशन में फिर क्या होता है, फिर प्रोजेक्ट किस तरह हम टर्मिनेट करते हैं। अच्छा, लेट्स सी, these are the main stages which are involved in a project life cycle, ठीक है। the first stage जो है that is the project initiation, that is the project analysis and preparation. See, you will have a problem, आपको अगर प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, सो फ्रॉम दैट पॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। जब आप थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, whenever you start to create an idea, that is the project initiation, ठीक है। सो सी, प्रोजेक्ट इनिशिएशन में कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो फर्स्ट वन जो है दैट इज दी to create an idea, then identify the project vision and objective. Once you get an idea, then you can define the vision. आइडिया की बेस में ना कि आपने क्या अचीव करना है, तो ये आपका विजन होगा, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। जो थर्ड स्टेप है दैट इज डिफाइनिंग द कंप्लीट स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। First, you will have idea. Based on idea, you will define the vision and objective. Then you will comprehensively define the scope कि at the end आपने क्या deliver करना है, ठीक है। थर्ड वन जो है, फोर्थ वन, that is you will have to list all of the critical project deliverables. And suppose there are different components are involved in your objective and your goal, so then you will have to clearly list and define all of that deliverable objective, okay. Also you will have state the customer and the project stakeholder, मीन स्टार्ट से आपने डिफाइन करना होगा कि आपकी आइडिया का जो सोल्यूशन है या जो गोल है उनके कस्टमर्स क्या होंगे, स्टेक होल्डर्स क्या होंगे। ऑल्सो डिफाइन द रोल, key role and responsibility of the people involved in the project. प्रोजेक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, उनका रोल क्या होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी,
You will have to create an organizational structure. आपने एक structure create करना होगा. You will have to document the overall plan. पूरा प्लान जो है उसको आपने डॉक्यूमेंट करना होगा. Also you will have to list the risk या issues या assumption which can be expected during the project execution. You will have to appoint the project team, the project manager. You will have to set up the project office. तो ये इनिशिएशन में आ जाता है, यहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है. ये क्रिएटिंग आइडिया, identifying the vision and objective, comprehensively defining the scope, listing the critical project deliverables, stating your customers and project stakeholders, defining the role and responsibility of the people, creating the structure for the project, documenting the plan, listing the risk and issues, appointing the project team and project manager, setting up the office. ये प्रोजेक्ट इनिशिएशन होता है, ये फर्स्ट स्टेज होता है प्रोजेक्ट का. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज द प्रोजेक्ट प्लानिंग. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज द प्रोजेक्ट प्लानिंग. अगेन based on your idea, based on your vision, based on your objective, create the project plan, create the resource plan, create the financial plan. प्लान का मतलब ये होगा प्रोजेक्ट प्लान, रिसोर्स प्लान, फाइनेंशियल प्लान, कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, उनका कास्ट क्या होगा और कब रिक्वायर्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइमिंग प्लान, क्वालिटी प्लान, फाइनेंशियल प्लान, रिसोर्स प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, रिस्क प्लान. मीन आपने प्लानिंग करना होगा ना कि अगर रिस्क आ जाए तो आप क्या करेंगे. प्रोजेक्ट की एक टास्क को आप कब परफॉर्म करेंगे, उस पर कितने रिसोर्सेज आएंगे, उस पर उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका कास्ट क्या होगा. एंड कांटेक्ट दी सप्लायर्स, सप्लायर्स को कांटेक्ट करें, पूरा अपना डिमांड दे दें कि हमें ये मटेरियल चाहिए. दैट इज द प्लानिंग. आफ्टर दैट द प्रैक्टिकल वर्क विल स्टार्टेड. ठीक है, सो दिस इज द फेज दैट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो मोस्टली मैनेजमेंट फिर यहां पे होता है, बिकॉज दिस इज द वर्क ऑफ द टॉप मैनेजर. यहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर या फील्ड पीपल इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सो मोस्टली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होते हैं स्पेसिफिकली ये इस पेस को टारगेट करते हैं प्रोजेक्ट की, because the efficiency and the effectiveness of the goal is depend on this stage. So execution is all about now building the deliverables. आपका जो गोल है या ऑब्जेक्टिव है, जो विजन है, जो प्लानिंग है, यहां पे आप उसकी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो द टीम लीडर will make this happen by allocating the resources, by utilizing the resources and keeping the team member focused on their assigned task. मीन जो टीम मेंबर है ना, उनको अगर आपने जो टास्क असाइन किया हुआ है तो वो अपने अपने काम करेंगे by utilizing the available resources जो आपने प्लानिंग की है रिसोर्सेज की. जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए, डिलीवर हो जाए, डेवलप्ड हो जाए, बिल्ड हो जाए, देन यू विल हैव टू क्लोज इट. इसको टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट कहता है, प्रोजेक्ट क्लोजिंग कहते हैं. रिमेंबर, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो यहां पे होता है. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. ठीक है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, बिकॉज क्वालिटी को आप कंट्रोल करते हैं, रिसोर्सेज को आप मॉनिटर करते हैं, तो ये एग्जीक्यूशन फेज के साथ हम फिर ये उसका एक सब स्टेज है फिर. सो द टीम विल क्लोज द प्रोजेक्ट व्हेन दे डिलीवर द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, जब रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव डिलीवर हो जाए ना तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, क्लोज्ड होगा. सो दिस इज द
final step in the project life cycle which allow the team to evaluate. इसमें फिर इवॉल्वेशन आ जाते हैं ना, आपने एग्जीक्यूशन कर दी प्रोजेक्ट की, आप इवॉल्वेशन कर लें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लें, इफ द रिजल्ट इज ओके देन टर्मिनेट द प्रोजेक्ट और नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ फिर चले जाए। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस होते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, क्वेश्चन है? क्लियर है? No question, sir. Clear है sir. अच्छा, first we have the initiation. So here you can see that in initiation we have the concepts, we are developing the idea. So here the level of effort is minimum. ठीक है, मीन ये करो जो है that is representing the relationship between the stages of the project, and the level of efforts or the resource utilization or the time consumption. So at this stage, at conception stage, at initiation stage, the level of effort are minimum. At the designing and planning stage, again, the level of effort is compared to the conceptual stage is maximum. And at the implementation stage, yeah, at the execution stage, the level of efforts or the resource utilization are maximum. And then at the final stage, मीन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, उसकी प्रेजेंटेशंस करनी होंगी, कस्टमर्स को आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करने होंगे। तो ये फाइनल स्टेज में होता है, तो उसमें ज्यादा रिसोर्सेज और लेवल ऑफ एफर्ट जो है वो कम होता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एफर्ट्स एंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके। अगेन सी फर्स्ट फेज कॉन्सेप्ट इन विच वी आर गैदरिंग द डेटा। ठीक है, डेटा को गैदर कर ले, आइडेंटिफाई द नीड, एस्टेब्लिश द गोल ऑब्जेक्टिव, define your stakeholders and customers, define the risk, this and the strategy for the risk which you will overcome, and guesstimate of the resources, rough estimate of the resources. Then in the second stage, the planning stage, developmental stage, appoint the team members, prepare the schedules, plan the resources and finances, and then the implementation. Okay, practically start the work, direct utilization of the resources. And then in the phase 4, finalize the product, review the concepts, evaluate the project, evaluate the results, and deliver it into the market. तो फर्स्ट पेज जो है यहाँ पे अप्रूवल, फाइनल स्टेप जो है पेज 1 का, दैट इज अप्रूवल। प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, फर्स्ट पेज क्लोज्ड हो गया। सेकंड जो है दैट इज द प्रेजेंट द प्रोजेक्ट चार्टर। ठीक है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोजेक्ट का वो यहां पे खत्म हो जाता है। यहां पे आपके पास डिलीवरेबल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सो जब ये स्टेज खत्म हो जाए, सो देन यू विल हैव समथिंग टू डिलीवर। ठीक है, और हियर यू विल हैव टू क्लोज द प्रोजेक्ट। ठीक है, again that is similar to that of the which we have discussed in the previous slide, that at different stages the level of efforts or the level of expenditure or the resources ये accumulative है, करो है। conceptual stage में इतना होगा, डिजाइन में ये होगा, कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन स्टेज में मैक्सिमम है और फाइनल स्टेज में फिर कम है। ठीक है, एंड दिस इज द ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ओवरऑल लेवल ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, अच्छा, अगेन सी दैट इज द प्लानिंग और इनिशिएशन, दैट objective, wishes and idea, then how you will perform the work, you are defining that what will be performed by whom and when. ठीक है, and at the end the project execution. ठीक है, so again during the
project life cycle, yeah, during these different stages of the project, we are playing with these three terms. Again, cost, time or schedule, and performance. So the ever-present goal of meeting performance, time and cost are the major consideration throughout the project life cycle. Mean इन तीन चीजों को हम देखते हैं project life cycle को from the initiation to the execution. At the same time, the project schedule, the project cost, and the project performance will be looked at each and every stage of the project. ठीक है. सो परफॉर्मेंस कब होगा? जब प्रोजेक्ट जो है वो विद इन द कास्ट एंड विद इन द शेड्यूल हो. ठीक है. सो जो रिसेंट वी कैन से दैट की पॉइंट है इसमें, that is that the performance and schedule are more important than cost during all stages. अक्सर कुछ प्रोजेक्ट में हम कास्ट को कास्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करते, बट परफॉर्मेंस और शेड्यूल जो है ये वी कैन से दैट ज्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में. ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट stages or the project life cycle. Now we have the project scheduling and controlling. See, plans are nothing, planning is everything. अगर प्लान है तो उससे तो कुछ नहीं होना, और अगर आप प्लानिंग कर ले तो that can deliver you something. And managers upon site delivering the project on time is one of their biggest challenge. Remember, जो biggest challenge है ना project management में, आपने objective को within the time deliver करना है. And see, project again क्या होते हैं? That will be a set of partially interrelated activities. जिस तरह हमने start में discuss की ना कि program क्या होता है? That is the combination of different related project in a coordinated way. Now similarly, a project is a set of interrelated activities. Mean एक project में फिर different activities होंगे. जिस तरह suppose अगर आप एक construction of home की example ले लें, तो सबसे पहले सर्वे करना होगा, फिर उसका डिजाइन प्रिपेयर करना होगा, फिर आपने फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करने होंगे, फिर उसके ऊपर वॉल्स कंस्ट्रक्ट करने होंगे, बीम्स और कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करने होंगे, उसके बाद जो है फिर रूफ होगा, उसके बाद फिर पेंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी. तो एक प्रोजेक्ट में इंडिविजुअल टास्क्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दीज टास्क्स आर इंटर रिलेटेड. सपोज अगर आपकी हाउस की फाउंडेशन आपने नहीं की है तो आप वॉल और बीम और कॉलम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. अगर वॉल और बीम नहीं है तो आप रूफ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ना. So these are the interrelated activities. So a project is a collection of tasks that must be completed in minimum time and at minimum cost. तो ये फिर project management हो जाता है. So see, अब एक project में different activity है, number of related activities हैं. तो अगर एक activity आप तब तक परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म ना की हो. So organizing these activities, defining the time period of these activities, starting and ending time, defining the starting and ending time of each activity, that is called project scheduling. ठीक है कि एक प्रोजेक्ट में सपोज 10 एक्टिविटी है. फर्स्ट आपने कौन सा एक्टिविटी करना होगा, उसके टाइम पीरियड क्या होगा, स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या होगा, उसके बाद आप कौन से एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, वो उनकी टाइम पीरियड्स क्या होंगे. ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होता है. प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जो है ये टाइम से रिलेटेड है. प्रोजेक्ट बजटिंग जो है वो कॉस्ट से रिलेटेड है. ठीक है. अच्छा, सो मोस्टली हमारे पास जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की, वो गैंट चार्ट होता है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है, CPM है. सो वी विल डिस्कस कि डिफरेंट मेथड से हम प्रोजेक्ट को किस तरह शेड्यूल कर सकते हैं. एंड इफ यू हैव द प्रॉपर शेड्यूलिंग फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी,
तो फिर आप उस प्रोजेक्ट की कंट्रोलिंग बेटरली कर सकते हैं। ठीक है, यहां से क्या होगा, आपके पास जो है प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी ना, प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर ले, प्रोजेक्ट को शेड्यूल कर लें, एंड इफ यू नो द स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी, सो योर ऑब्जेक्टिव विल बी इन टाइम। आपकी जो ऑब्जेक्टिव होगा, उसकी जो डिलीवरी होगी वो विद इन द टाइम होगी। ठीक है, सो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जो है, दैट इज द, you will have the objective. Now determine the available resources, and most importantly sequence of the activity. ठीक है, establish the objective, उनके लिए रिसोर्सेज आप डिटरमाइन कर लें, और एक्टिविटी की जो सीक्वेंस है, दैट इज द शेड्यूलिंग, कि सबसे पहले कौन सा एक्टिविटी करना होगा। अगर ये एक्टिविटी सपोज कंप्लीट हो जाए तो हम फिर दो एक्टिविटी एट अ टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। जब ये दो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो हम फिर नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर ले, और जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। सो दैट इज द सीक्वेंसिंग ऑफ द एक्टिविटी। You will have to determine the activity time, starting and ending time. You will have to find out the critical activity, कि अगर एक एक्टिविटी डिले हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट आपका डिले हो सकता है। दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, यहां पे देखें, 4 एक्टिविटी हम कब स्टार्ट कर सकते हैं, जब तक एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 कंप्लीट ना हो। सपोज अगर एक्टिविटी 2 कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर एक्टिविटी 3 कंप्लीटेड ना हो, आप एक्टिविटी 4 स्टार्ट नहीं कर सकते। सो दीज टू मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी 4। तो अब अगर इन दोनों में से सपोज इसका टाइम जो है 4 डेज है और इस एक्टिविटी का टाइम 6 डेज है, तो इस एक्टिविटी की स्टार्टिंग के लिए मैक्सिममली आपको 6 दिन रिक्वायर्ड होंगे। अब अगर ये एक्टिविटी एक दिन भी लेट हो जाए ना, तो पूरा प्रोजेक्ट लेट होगा। और अगर ये एक्टिविटी एक दिन लेट हो जाए तो प्रोजेक्ट पे इफेक्ट नहीं होगा। ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? जी, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो सी, सपोज अगर एक्टिविटी 2 का जो टाइम पीरियड है वो 4 डेज है, एक्टिविटी 3 का जो टाइम पीरियड है वो 6 डेज है, तो जब ये दोनों एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तभी आप एक्टिविटी 4 स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर एक्टिविटी 2 एक दिन डिले हो जाए तो एक्टिविटी 4 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज एक्टिविटी 3 का टाइम पीरियड 6 डेज है। अगर एक्टिविटी 2 2 दिन भी लेट हो जाए तब भी प्रोजेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक्टिविटी 3 अगर एक दिन भी लेट हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट डिले होगा। तो ये जो 3 एक्टिविटी है, इसको थर्ड एक्टिविटी है, इसको हम क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं फिर। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी जो है ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, so before starting the project scheduling, first you will have the uh, statement of the project goal and resources. Then you must have the content and requirement of each activity, number of activity. तो फिर हम शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं, वी आर डिफाइनिंग, वी आर स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी। और फिर मॉनिटरिंग हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, वी आर कीपिंग व्यू ऑन दी डिफरेंट एक्टिविटीज के, हर एक एक्टिविटी टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं और टाइम पे खत्म हो रहा है, इसको मॉनिटरिंग कहते हैं फिर। ठीक है, या दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ओके, these are mostly we have discussed that what is project management. Okay, so before starting the scheduling of the project,
फर्स्ट आपने क्या करना होगा, WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि प्रोजेक्ट को डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड कर लेना। एक प्रोजेक्ट है, उसमें इंडिविजुअल एक्टिविटीज होंगे ना, सो ये जो ब्रेकिंग डाउन है दैट इज कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट यू विल हैव द मेन मॉड्यूल्स, then the modules will be broken down into sub-component, then the sub-component will be in component, activities, and individual tasks, and identify the activity, task, resource requirement, and the relationship between each and everyone. ठीक है, अब देखें ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है ये आप किस तरह करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। सपोज अगर प्रीवियसली आपने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है और अभी आप दोबारा सिमिलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस यू कैन फाइंड आउट कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से एक्टिविटीज होंगे, मेन एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लें। और अगर न्यू प्रोजेक्ट है सो देन यू कैन डू इट थ्रू एक्सपर्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ये WBS ये होता है। देखें, सपोज इफ यू हैव अ प्रोग्राम, देन फॉर एग्जांपल देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स इन अ प्रोग्राम, फिर हर एक प्रोजेक्ट में सपोज 2 टास्क्स हैं, हर टास्क में 2 सब टास्क्स हैं, फिर एक टास्क में वर्क पैकेजेस हैं। नाउ सी, जब ये 2 वर्क पैकेज कंप्लीट हो जाए सब टास्क 1 कंप्लीट होगा, जब ये 2 वर्क पैकेज कंप्लीट हो जाए सब टास्क 2 कंप्लीट होगा। सिमिलरली दीज विल बी कंप्लीटेड। जब ये 2 सब टास्क कंप्लीट हो जाए तो टास्क 1 और टास्क 2 कंप्लीट होगा, जब ये 2 कंप्लीट हो जाए तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, प्रोजेक्ट ए। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी, तो प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। इसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। बिफोर स्टार्टिंग इनटू द शेड्यूलिंग यू विल हैव टू डू द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि आप अपने प्रोजेक्ट में जो डिफरेंट एक्टिविटीज है ना उसको आइडेंटिफाई कर लें, प्रोजेक्ट को डिफरेंट एक्टिविटी में ब्रेक कर ले। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शेड्यूलिंग जो होते हैं दैट इज अगेन उसमें डॉक्यूमेंट्स होता है। यू विल हैव टू फोकस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑन टाइम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस। नाउ जो स्टेप्स है बेसिकली के प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग आप किस तरह करेंगे, एज वी हैव डिस्कस्ड कि फर्स्ट आप डिफाइन कर ले कि एक प्रोजेक्ट में कौन कौन से एक्टिविटी है, उनका सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट कौन सा एक्टिविटी करना है, फिर कौन सा एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी का टाइम और उसके लिए शेड्यूल डेवलप करना, दैट इज द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, नाउ सी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के ये स्टेप्स हैं और ये उसकी टेक्निक्स है। वी विल डिस्कस दीज 4 टेक्निक्स कि एक प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग आप किस तरह डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगेन गोइंग इनटू डिटेल, कुछ बेसिक्स हैं कि एक प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजीज, सी मोस्टली एक्टिविटीज हम एरोस पे रिप्रेजेंट करते हैं। नोड्स आर रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ सेट ऑफ एक्टिविटी। सी suppose if there are 2 activity in a project, ठीक है, so activity A that is the starting of the project, starting of the project, this is the termination of the project। अब इस प्रोजेक्ट में 2 एक्टिविटी है, एक्टिविटी A एंड एक्टिविटी B। पहले आपने एक्टिविटी A करना होगा, फिर आप एक्टिविटी बी स्टार्ट करेंगे। सो दिस ए इज कॉल्ड प्रेडिसेसर ऑफ बी। समझ आ रहे हैं? एक प्रोजेक्ट में सपोज अगर डिफरेंट एक्टिविटी है तो एक एक्टिविटी से पहले जो एक्टिविटी आपने करना होगा उसको प्रेडिसेसर कहते हैं। ठीक है, सपोज अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है ना, तो अगर आपके पास फाउंडेशन ना हो तो आप वॉल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो फाउंडेशन जो है दैट इज द प्रेडिसेसर एक्टिविटी फॉर द वॉल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट जो है
दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी ए, ये एंड ऑफ एक्टिविटी बी होगा, सॉरी एंड ऑफ एक्टिविटी ए होगा. सो एंड ऑफ एक्टिविटी ए इज द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी and end of activity B is the end of the project. ठीक है. So activity A must be completed before the commencement of activity B. So activity A is the predecessor of activity B. ठीक है. नेटवर्क शेड्यूलिंग इसको कहते हैं. ठीक है. ये इसको नोड्स कहते हैं. ये जो सर्कल्स हैं ना, ये नोड्स हैं और ये एरोज हैं. These are defining the relationship between the two nodes या the two activities. ठीक है. अब देखिए, सपोज अगर ये प्रोजेक्ट है, इसमें 3 एक्टिविटीज हैं. सो एक्टिविटी 1 इज द प्रेडेसेसर ऑफ एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 इज द प्रेडेसेसर ऑफ एक्टिविटी 3. ठीक है. सो इनको इवेंट्स भी कहते हैं या एक्टिविटी भी आप कह सकते हैं, या इवेंट्स है. सपोज दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी. अक्सर एरो पे हम एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं और ये नोड्स जो है ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन दिस इज जस्ट अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. ठीक है. एक्टिविटीज हैव ड्यूरेशन एंड मे हैव प्रेसिडेंस. मीन हर एक एक्टिविटी की कुछ ड्यूरेशन तो होगा. जिस तरह सपोज अगर ये एक एक्टिविटी है ना, सो 1 इज द स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी 1. सपोज दिस इज ए एक्टिविटी, दिस इज बी एक्टिविटी. 2 एक्टिविटीज है. 1 जो है दैट इज द स्टार्टिंग, तो ये इवेंट होगा ना. मीन एक्टिविटी एक जनरल टर्म होगा, इवेंट स्पेसिफिक टर्म होगा. एक एक्टिविटी की 2 इवेंट्स होंगे, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग. सो यहां पे जो 1 है ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग इवेंट ऑफ एक्टिविटी ए. 2 जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एंडिंग इवेंट ऑफ एक्टिविटी ए. सिमिलरली 2 is representing the starting event of activity B and 3 जो है that is the ending event of activity B. So 2 common है ना. ending of A is starting of B. ये मैं जो कुछ कह रहा हूं समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर. अच्छा. So defining the activities in terms of their beginning and ending. एक्सक्यूज मी सर. जी. सर अभी हमारा लैब है फिजिकल सर, तो क्विज भी है सर. आप वो क्लास कब तक खत्म कर लेंगे? कौन से सब्जेक्ट का है? नफीदुल्लाह. एनवायरमेंटल सर, की है सर. फिजिकल लैब है उसकी. यस सर. सर. ठीक है, मैं 10-15 तक खत्म कर रहा हूँ. ठीक है. ओके सर 10 पे क्लास स्टार्ट होती है और फिर हॉस्टल से जाना भी होगा तो मुश्किल हो जाएगा सर. मैं कह दूंगा मैडम से आप 10:30 पे आ जाए. ठीक है. ठीक है सर. ओके. 10:30 तक आप लैब में अवेलेबल होनी चाहिए. अच्छा. Just finishing these terminologies or concepts of the activities पर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फाइनल क्लास होगा उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे कि आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है तो उसकी शेड्यूल आप किस तरह प्रिपेयर करेंगे. लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्टिविटी को आप एरो पे सपोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो नोड्स हैं ये आपको इवेंट शो कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम. AOA डायग्राम इसको कहते हैं. एक्टिविटी एरो पे आ रहे हैं और नोड्स जो है ये हमें इवेंट शो कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द AOA डायग्राम. एरो एक्टिविटी ऑन एरो. ठीक है. नाउ सी जस्ट एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट एक्टिविटीज होंगे. अब इस प्रोजेक्ट में कितने एक्टिविटीज हैं? 3 एक्टिविटीज हैं. सी, A, B और C. ये एरोज जो है ये एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये 1, 2, 3 जो है ये इवेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. सो 1 जो है
दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी ए, 2 जो है दैट इज द एंडिंग ऑफ एक्टिविटी ए, एंड 2 जो है दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी 3 एंड स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी 4। जब ए एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए ना तो बी और सी आप एट अ टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ए एक्टिविटी must be completed before the starting of B and C. So A is the predecessor of B and C. ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखें, जब 2 या एक्टिविटी A जब फिनिश हो जाए तो आप B और C स्टार्ट कर लें। जब B फिनिश हो जाए तो आप एक्टिविटी D स्टार्ट कर लें और एक्टिविटी E स्टार्ट कर लें। अब देखिए इस प्रोजेक्ट में 5 एक्टिविटीज है, ए बी सी डी ई। तो जब तक ए एक्टिविटी कंप्लीट ना हो तो आप बी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली जब ए एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो आप बी और सी स्टार्ट कर लें। जब बी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो आप ई एक्टिविटी स्टार्ट कर लें। जब सी और ई कंप्लीट हो जाए तो ये दोनों एक्टिविटीज क्लोज्ड होंगे ना, और जब बी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो यू कैन स्टार्ट द एक्टिविटी डी, और जब एक्टिविटी डी ई और सी कंप्लीट हो जाए तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है। अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दिस वन। तो इसमें आप देखें ए प्रोजेक्ट, ये एक्टिविटीज है। A is the starting या the first activity, तो इसका प्रेडिसेसर तो नहीं होगा ना। अब B और C आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब A B कंप्लीट हो जाए। D एक्टिविटी आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं D और E जब B कंप्लीट हो जाए। F आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब C कंप्लीट हो जाए। G आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब D एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, और H आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब E और F कंप्लीट हो जाए। So मतलब यह है कि the activity which is required before the starting of another activity that is called predecessor। ये उसका डायग्राम बनेगा। फिर देखें B और C तभी आप करेंगे जब A कंप्लीट हो जाए, और जब B कंप्लीट हो जाए यू कैन स्टार्ट D एंड E। जब C कंप्लीट हो जाए यू कैन स्टार्ट F। जब F कंप्लीट हो जाए यू कैन स्टार्ट H, और जब H और G कंप्लीट हो जाए तो Z कर ले, और जब Z फिनिश हो जाए तो प्रोजेक्ट फिनिश होगा। अब देखिए एक्टिविटी नोड्स पे रिप्रेजेंट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसके साथ आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है। तो सी एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम है ये। सो बी एंड सी आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक ए कंप्लीट ना हो, और डी आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब बी और सी कंप्लीट ना हो। सो ए इज द प्रेडिसेसर ऑफ बी एंड सी, एंड बी एंड सी आर द प्रेडिसेसर्स ऑफ डी। ठीक है। अच्छा, एक किस तरह होता है कि सपोज अगर जिस तरह यहां पे देखें ना, जब ए एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो आप बी और सी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ वन एक्टिविटी यू कैन स्टार्ट मल्टीपल एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को बर्स्ट एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। इसकी स्टार्टिंग एक्टिविटी तो नहीं है ना, ये फर्स्ट एक्टिविटी है। नाउ एक्टिविटी 1 2 1 3 एंड 1 4। अच्छा, एक्टिविटी यहां पे है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके साथ कंफ्यूज ना हो। एरो पे आप अपने लिए एक्टिविटी लिखें। सो ए बी एंड सी आप कंबाइनली स्टार्ट कर सकते हैं, एक टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। सो इनकी प्रेडिसेसर्स नहीं है। अब यहां पे देखें, सपोज दैट इज ए बी एंड सी। जब ये तीनों एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की ना, सपोज दैट इज एक्टिविटी ए बी सी एंड डी।
सो जब एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट द एक्टिविटी बी सी एंड डी. सो एक्टिविटी ए इज कॉल्ड दी बर्स्ट एक्टिविटी. इसको फिर बर्स्ट एक्टिविटी कहता है. ठीक है. या ये जो एक्टिविटी बी सी एंड डी है दैट कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल एक्टिविटी ए कंप्लीटेड. ठीक है. तो इसको बर्स्ट एक्टिविटी कहते हैं. अच्छा, दिस वन जो है, सपोज दीज आर दी एक्टिविटी ए बी सी और दिस इज डी. जब ये तीन एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप ये एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं. तो इसको मर्ज एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है. डी आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक ये तीनों कंप्लीट ना हो. इसको मर्ज एक्टिविटी कहते हैं. प्रीवियस जो था, आप ये तीन स्टार्ट नहीं कर सकते जब ये ए स्टार्ट ना हो, तो इसको बर्स्ट एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. ठीक. सर ये 1 2 3 जो है ये मर्ज होंगे ना, ये नोड्स होंगे. दीज आर दी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. जी आप क्या कह रहे हैं? सर मेरा मतलब ये है ना कि 5 6 और 7 जब कंप्लीट हो जाए तो फिर हम 8 एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं. ये नंबर जो है ना, ये आपने दो नंबर्स कंबाइन करने होंगे. मीन एक्टिविटी 5 8, एक्टिविटी 6 8, एक्टिविटी 7 8. आसानी ये होती है कि आप एरो पे अपने लिए नेम लिखे एक्टिविटी की. ये 5 जो है दैट इज स्टार्ट अप ए, 8 जो है दैट इज एंड अप ए, 6 जो है दैट इज स्टार्ट अप बी, 8 जो है दैट इज एंड अप बी, 7 इज स्टार्ट अप सी, 8 इज एंड अप सी. मीन ये तीन एक्टिविटीज डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट होंगे लेकिन एक टाइम पे एंड होंगे. और जब ये एंड हो जाए सो देन यू कैन स्टार्ट दीज एक्टिविटीज. ठीक है. सर तो कंबाइंड किसको कहते हैं? ये ए बी सी कंबाइंड होंगे ना सर? नहीं, एक्टिविटी मीन एट अ टाइम आप डिफरेंट एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं ना, एट अ टाइम डिफरेंट एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं आप क्या एग्जाम्पल दूं. सपोज अगर आप एक होम की कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो आप सर्वे भी स्टार्ट कर लें, कास्ट एस्टिमेशन भी स्टार्ट कर लें और उसकी डिजाइनिंग भी स्टार्ट कर लें. तो तीन एक्टिविटी आपने एक टाइम पे स्टार्ट कर दी. जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएं, तो फिर आप फाउंडेशन स्टार्ट कर लें. तो फाउंडेशन की स्टार्टिंग के लिए आपके पास सर्वे और स्ट्रक्चर डिजाइन और रिसोर्स होनी चाहिए. समझ आ रहे हैं? फाउंडेशन आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके पास ये तीन एक्टिविटी हो ना. तो इसको मर्ज एक्टिविटी कहते हैं. मर्ज हो जाते हैं ना, एक पॉइंट पे कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है. यस सर. सर मेरा मकसद ये है कि ए बी और सी ये मर्ज एक्टिविटीज हैं. ए बी सी नहीं, इनका इवेंट मर्ज है, एंड पॉइंट उनका मर्ज है. सी मैं दो टर्म यूज कर रहा हूं, एक इवेंट और एक एक्टिविटी. ठीक है. मीन डी आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब ए कंप्लीट ना हो, बी कंप्लीट ना हो और सी कंप्लीट ना हो. जरूरी नहीं है कि ये एक ही टाइम पे कंप्लीट होंगे. मीन ending of A, B and C are required for the starting of D. अब क्लियर हो गया? यस सर, अब क्लियर हो गया सर.